عوامی احتساب 8 فروری کو ہونے جا رہا ہے۔ کس کو ووٹ دینا ہے کس کو نہیں، یہ فیصلہ عوام نے کرنا ہے اور اس کی الٹی گنتی بھی تیزی سے جاری ہے۔ یہ وہ عمارت ہے جس پر عوامی نمائندگان لوگوں کے لیے مختلف فیصلے کریں گے، ان کے مستقبل کے لیے فیصلے کریں گے، ان کی بہتری کے لیے قانون سازی بھی کی جائے گی۔ کون سا امیدوار یہاں پر پہنچ جائے گا، یہ فیصلہ 8 فروری کو ہو جائے گا۔ اور ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ گہما گہمی بھی جاری ہے، مختلف جگہوں پر منشور بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اپنی منشور کے حوالے سے بھی لوگوں کو کمیونیکیٹ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جیسے کہ منشور دیا ہے کہ عوامی منشور ہے یہ، اور انہوں نے مختلف کارڈز کا بھی اجرا کیا ہے، یعنی کہ روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے منشور کے اندر کارڈ بھی شامل ہو گئے، جس میں مختلف کسان کارڈ ہیں، خواتین کارڈ ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ مختلف ریلیٹڈ کارڈز بھی موجود ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو نوجوان نسل ہے ان کو بلا سود قرضے فراہم کرنے کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے بات کی گئی۔ اور دوسری جانب اگر بات کی جائے تو مکانات، اچھی معیشت، ان سب چیزوں کے وعدے کیے گئے ہیں مسلم لیگ نون کی جانب سے۔ کون کہاں سے کس جگہ سے امیدوار ہے اور کس امیدوار کا پلڑا بھاری ہے، اس بارے میں آج کے اس سیگمنٹ میں بات کریں گے، اور سب سے پہلے رخ کریں گے شہر قائد کراچی کا۔ اور جی این این نے اپنے پورے نیٹ ورک کے ساتھ آپ کو اس جگہ جگہ کی خبریں بھی دینی ہے۔ جی این این کے نمائندے نیاز علی اہم حلقے جس کا نام ہے NA 242 کی صورتحال ہمیں بتانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس حلقے میں اگر بات کی جائے تو MQM کے مصطفیٰ کمال اور پیپلز پارٹی کے قادر خان مندوخیل میں کانٹے کا مقابلہ متوقع ہے۔ اس حلقے میں ووٹرز کی کیا رائے ہے، تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ضلع کیماڑی NA 242 کا حلقہ۔ اس حلقے کے ساتھ PS 4 صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی آتی ہے جو PS 111 سے لے کر 114 پر مشتمل ہے۔ اس علاقے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں مجموعی آبادی 10 لاکھ اور 25 ہزار کے قریب ہے، جبکہ ووٹر کی تعداد 4.5 لاکھ ہے۔ اس سال MQM کے مصطفیٰ کمال، پاکستان تحریک انصاف کے دواخان صابر جو آزاد حیثیت میں حصہ لے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ قادر مندوخیل سمیت 22 قومی اسمبلی کے امیدوار جو ہے مد مقابل ہے۔ اگلا الیکشن آ رہے ہیں، کون ہے آپ لوگوں کا امیدوار، کس کو ووٹ دیں گے؟ ہمارا تو امیدوار یہ ہے کہ ہم لوگ یا کہ نعبد یا کہ نستعین کو ہی ووٹ دیں گے، عمران خان کو۔ یہ تو تحریک انصاف کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ کا امیدوار کون ہے اور کن شرائط پہ ہیں؟ ہمیں تو امید ہے مصطفیٰ کمال سے۔ آپ کو یاد ہوگا مصطفیٰ کمال یہاں ضمنی الیکشن میں لڑا تھا، لیکن وہ نشست کامیابی انہوں نے حاصل نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو کے اس حلقے کے لیے، عوام کے لیے کیا کچھ کریں گے؟ وہ اس حلقے کے لیے بہت کچھ کریں گے۔ الیکشن آ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کس کو ووٹ دینا چاہیے، آپ کس کو ووٹ دیں گے تاکہ اس علاقے کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکے؟ مسئلہ سارا یہ ہے نا، یہ ہے تو سارے چٹے بٹے ایک ہی ہیں، ٹھیک ہی ہیں، اور جو ہے نا شروع سے جو تھا نا نواز شریف صحیح تھا، تو جو وہ ایک بزنس مین اور بزنس مین کی طرح کے وہ کام کرتا رہا۔ تو کراچی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک انہوں نے جو کام کیے وہ پنجاب میں ذاتی کی، کراچی کے لوگوں کو انہوں نے جو ہے نظر انداز کیا ہے۔ کراچی کے لوگوں کو جو ہے نا زرداری چھوڑے گا تو وہ کوئی کرے گا نا۔ اس علاقے کے جو مسائل ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں، کون اقتدار میں آ کے آپ کے جو پانی، بجلی، گیس، لوڈ شیڈنگ، ٹوٹی پوٹی سڑکیں، ان کی حالت درست کر سکتے ہیں؟ کہہ رہے تو سب ہی ہیں کہ ہم کریں گے، مگر رزلٹ کوئی بھی نہیں دیتا ہے۔ عوام پیچھے بھاگ رہی ہے، بیچاری کام چھوڑ کے ووٹ دینے جا رہی ہے، ان کے چکروں میں آگے پیچھے جا رہی ہے، گھر میں کوئی کسی کا راشن نہیں ڈال رہا ہے۔ جو بھی آئے ووٹ لے کر گئے، وعدے کرتے ہیں کہ بھئی ہم پانی دیں گے، بجلی دیں گے، آج تک کچھ بھی نہیں دیے کسی نے بھی۔ آپ کا جو مسئلہ ہے اس علاقے کے، جہاں پانی، بجلی، گیس، یہ کون حل؟ بجلی کچھ بھی نہیں ہے، یہ سارا ہمارے سے لے کے ہمارے پہ بیچا جا رہا ہے بس۔ اس علاقے کے مسائل میں جو نا پانی، گیس، بجلی، جتنی بھی بنیادی ضروریات وہ سب سے یہ بلدیے کی عوام محروم ہے۔ یہ نظام ہی ٹوٹل کرپٹ ہے، چاہے کوئی بھی پارٹی آوے اس نے کرنا کچھ نہیں ہے، خالی عوام کو بیوقوف بنانا ہے، انہوں نے اپنی جیبیں بھرنی ہے اور پھر چلے جانا ہے۔ ووٹ دیں گے پیپلز پارٹی کو، کیونکہ وہ سندھ کی گورنمنٹ ہے اس کی، اور جو مسائل ہے وہ پیپلز پارٹی حل کر سکتی ہے۔ ایک آتا ہے وہ پانی لے کر آتا ہے، دوسرا آتا ہے وہ پانی بند کرتا ہے، تیسرا آتا ہے وہ روڈ بناتا ہے، چوتھا آتا ہے وہ روڈ کھود کے چلا جاتا ہے۔ یہ بلدیہ کا پرسان حال آپ یہ دیکھ لیں، جو بھی آیا ہے خالی وعدے، لارے لپے، جو بھی آیا ہے سب آئیں گے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی نہیں آتا ہے۔ اس کو لوٹ کے کھانے والے ہیں، سب مسائل ہی مسائل ہیں، نہ بجلی ہے، نہ پانی ہے، نہ روڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرا بھائی۔ یہاں پہ کوئی مریض اگر بیمار ہو جاتا ہے اس کو ایمبولینس گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ کراچی کے حلقہ NA 242 میں اس کیماڑی کے ضلع کے مختلف علاقے
جس میں بلدیہ ٹاؤن کے کچھ حصے، میٹروول، سچن گوڈ، گلشن غازی کے ساتھ ساتھ کچھ کچی آدی اور کچھ شہری علاقے شامل ہے۔ یہاں کے شہری بھی کراچی کے شہریوں کی طرح اپنے مسائل بیان کر رہے، کہیں گیس نہیں ہے تو کہیں پانی، بجلی اور ٹوٹی پھوٹی سڑکیں شہریوں کے لیے اذیت کا باعث بنی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، نیاز علی میں بتا رہے تھے کہ ماڑی کے اس خصوصی حلقے کے حوالے سے اور کیا صورتحال ہے آپ نے خود ہی جانی۔ کراچی کے بعد اب رخ کر لیتے ہیں کوئٹہ کی جانب، جہاں پر سیاسی گہما گہمی اس وقت عروج پر ہے اور NA 262 کوئٹہ کی تحصیل صدر اور کچلاک پر مشتمل ہے۔ اس حلقے کے مکینوں کو بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کی شکایات ہے۔ GNN کی نمائندہ ختیجہ کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے اور مقامی افراد سے انہوں نے گفتگو بھی کی ہے۔ کیا بتا رہی ہیں ختیجہ؟ تو آئیے ان سے ہی جان لیتے ہیں۔ جی ختیجہ، بتائیے گا۔ کہ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 262 میں، جو کہ پرانی حلقہ بندیوں کے مطابق بلوچستان اسمبلی کی نشست NA 264 کہلاتی تھی، اس علاقے کے اگر ہم مسائل کی بات کریں تو یہاں پر اس علاقے میں جو سڑکیں ہیں وہ زبو علی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور یہاں پر جو ہے بجلی کی اور گیس کی عدم فراہمی کے ساتھ ساتھ جو ہے گیس کی لوڈ شیڈنگ جو ہے برقرار ہے۔ عوامی ووٹرز اپنے جو منتخب نمائندے ہیں پچھلے ادوار کے، اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ کون سے ایسے ترقیاتی کام یہاں پر کیے اور کون سے ایسے سہولیات ہیں جس سے جو ہے تاحال وہ محروم ہے۔ یہاں آپ انفراسٹرکچر دیکھ لے، یہاں پہ روڈوں کی حالت دیکھ لے، اور ہمارے سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہاں پہ پانی کا ہے، گیس کا ہے اور بجلی کا ہے، جو بالکل آپ یہ سمجھے کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور ہر حکومت میں جو لوگ آتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بجلی کے مسئلے حل کریں گے، ہم آپ کے گیس کے مسئلے، اور انہی چیزوں کے اوپر یہ لوگ ووٹ تو لے لیتے ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ بتائیے یہاں پر کیا کیا جو ہے بنیادی ضروریات ہے جو آپ کو آپ کے دہلیز پر نہیں مل رہے، اور کو عوامی نمائندوں نے یہاں پر جو ہے کون کون سے جو ہے کام کیے؟ یہاں پہ کوئی بھی یونیورسٹی آپ کو نظر نہیں کی، کوئی بھی اسپورٹس کمپلیکس آپ کو نظر نہیں آئے گا، گیس کا ابتر صورتحال ہے، ابھی تو بالکل یہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے۔ آپ گرمیوں میں آ کے دیکھ لے، یہاں پہ جو ہے وہ گیس نہ ہونے کی برابر ہوتا ہے، اور بجلی کا تو ایسے حالت ہے کہ گرمیوں میں نہیں ہوتا ہے، سردیوں میں 5-6 گھنٹے آتی ہے۔ روڈوں کی، سیوریج کی 2 قطرے پانی کا آتا ہے، یہ سارا شہر ہے ہمارا کچلاک شہر، یہ بند ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، ایجوکیشن نہیں ہے یہاں پہ۔ بلوچستان کا گیس ہے، کوئٹہ میں بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ کچلاک میں بھی گیس نہیں ہے، گرمیوں میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ ٹرانسپورٹ جو ہے شہر میں ٹرانسپورٹ بہت زیادہ ہے، اور روڈوں کے مسافروں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے۔ سالوں سے گیس نہیں ہے، سالوں سے جو ہے نا پانی نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، بالکل ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ہیں، یہاں پہ تعلیم نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، یہاں پہ جو ہے نا ہاسپٹل نہیں ہے۔ گزشتہ ادوار میں کون سے جو ہے ترقیاتی کام کیے، کون سے ایسے مسائل ہیں جس سے جو ہے آپ لوگ تاحال جو ہے مشکلات سے دوچار ہے؟ یہ پل ٹوٹا ہوا ہے، صحیح ہے، تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ وہ ابھی تک نہیں بنایا ہوا ہے۔ یہاں پہ تقریباً بہت سی آبادی ایسے گزر رہی ہے نا، سب سے بڑا مشکل تو وہی ہے۔ نہ بجلی ہے، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور ہم نے جس کو ووٹ دیے اس کو پھر دیکھا بھی نہیں ہے کبھی کہ یہاں پہ آئے کوئی کام کا وزٹ کرے یا پل وغیرہ کچھ بھی۔ یہ پل 2 سال سے ٹوٹا ہوا ہے، ابھی تک کوئی نہ آیا ہے نہ پوچھا ہے۔ جو بڑے بڑے مسائل یہاں پر ہیں، ایجوکیشن کے، ہیلتھ کے، اور صاف پانی کے، اور جو ہے یوتھ کے لیے، نوجوانوں کے لیے سپورٹس کے گراؤنڈز کی، تو کافی ایسی مشکلات ہیں جن پہ جو ہے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جو واٹر فلٹریشن پلانٹ سے وہ خراب ہے، جس کی وجہ سے یہاں کے جو شہری ہے وہ پینے کے صاف پانی سے محروم ہے۔ ساتھ ہی ساتھ نوجوانوں کے لیے یہاں پر کرکٹ گراؤنڈ کا جو ہے انتظام کیا جائے، اور جب 8 فروری کے انتخابات آ رہے ہیں تو جب اپنا حق رائے استعمال کریں گے تو وہ یہ تبدیلی لانا چاہتے ہیں کہ یہاں کے جو عوامی نمائندے ہیں وہ ان کے لیے جو ہے کام کرے، ان کے لیے جو ہے اقدامات اٹھائے، اور جو نوجوان نسل کو جو ہے فیسلٹی۔ تو ناظرین، یہ ہے بلوچستان کے دارالحکومت کی جگہ جہاں کوئٹہ کے اندر مسائل توں کے جو ہیں۔ اب تو بات کرتے ہیں پشاور کی۔ پشاور بھی ایک اہم شہر جہاں سیف شیرانی NA 28 کے اندر موجود ہے۔ جن حلقوں میں تگڑے مقابلے ہونے ہیں ان میں سے یہ ایک حلقہ ہے۔ یہاں سے نور عالم خان جو کہ امیدوار ہیں، وہ تحریک عدم اعتماد کے وقت منحرف اراکین میں شامل ہو گئے تھے۔ NA 28 کا ووٹر کیا خیالات رکھتا ہے، انتخابات میں کس کو ووٹ دینے جا رہا ہے، اور وہاں کے مسائل کیا ہیں، بتائیں گے ہمارے نمائندے سیف شیرانی۔ جی سیف، بتائیے گا کیا صورتحال ہے NA 28 میں؟
जी शुक्रिया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कौमी असम्बली का हल्का NA-28 जो 3 सूबाई हल्कों पर मुश्तमिल है। इस हल्के में जो बड़ा मसला है वो पानी का है कि लोगों के दांत पीले होते ही गिर जाते हैं। इस हल्के में कौन कौन से मसाइल है, बिजली, गैस, पानी और मवासलात का निज़ाम कैसा है, वोट के बदले लोग क्या तब्दीली चाहते हैं, किसको वोट देंगे, हल्के की आवाम का मजीद क्या कहना है, इनसे मजीद जान। अच्छा, क्या कहेंगे यहाँ पे जो सफाई का निज़ाम है, सफाई अमला आता है या नहीं आते, क्या कहेंगे? ये नदी नाले जो गंदगी के ढेर बने हुए हैं, इससे किस्म किस्म की बीमारियाँ फैलती है और उसके तदारुक के लिए हुकूमत हमारी तरफ कोई तवज्जो देती ही नहीं है। जी बिजली बिल्कुल नहीं है, 24 घंटों में सिर्फ 2 घंटे आती है। पानी का बहुत मस्जिदों में मसला बनता है, वहाँ पानी नहीं होता है। ये निकासी के बाद हमारा सबसे बड़ा मसला बिजली का है। ये सब तो कम है, फिर भी वो गुजारा करता है। मसाइल काफ़ी ज़्यादा है यहाँ की जो मकीन है। अब वोट के बदले क्या तब्दीली चाहते हैं? अच्छा, ये बताइए क्या तब्दीली आप लोग यहाँ पे चाहते हैं, वोट किसको देंगे? वोट इंशाल्लाह हम इमरान खान को देंगे, PTI को इंशाल्लाह, पूरा पाकिस्तान इमरान खान को वोट देंगे इंशाल्लाह। और सबसे बुनियादी मसला जो इस इलाके का है वो बुनियादी सहूलियात है। बुनियादी सहूलियात कोई भी नहीं है इधर। अच्छा, आप क्या कहेंगे यहाँ पे कौन से मसाइल है और वोट के बदले क्या तब्दीली चाहते हैं? जी यहाँ तो लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है, बिजली नहीं है। 24 घंटों में 3 घंटे 2 घंटे बिजली आता है, वो भी इस तरह आता है कि आधा घंटे के बाद 5 मिनट होता है वो फिर चला जाता है। और गंदगी भी इधर बहुत ज़्यादा है और हम वोट इंशाल्लाह इमरान खान को देंगे। मैं इमरान खान को वोट इसलिए देता हूँ और दूंगा और आइंदा भी दूंगा क्योंकि उसने हमें शऊर दिया और वो सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचता है। PTI ने शऊर दिया है और साथ दूसरा शहरी मौजूद है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, वोट किसको देंगे? इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी हो तो वोट मौलाना साहब को देंगे क्योंकि वो दीनी मदरस है, वो उलमाओं की सपोर्टर है, उलमा उसके सपोर्टर है। इमरान खान की बहुत सी जना कारकर्दगी है, आवाम को भी नज़र आ रही है, हमें भी नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और सेहत कार्ड जो है सबसे बड़ी उसकी जना ये मंशूर सबसे बड़ी अच्छी मंशूर है। सेहत कार्ड एक अच्छा मंसूबा था। अब ये बताइए कि यहाँ पे पहले भी PTI के आदमी मुंतखब होते हैं, उन्होंने इस हल्के के लिए क्या किया, आप लोग मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, PTI के जो बहुत कारकुन इधर गलियाँ बनाई है, मस्जिद के सामने रास्ते बनाए है, दूसरे हमारे सबसे सर्विस रोड है ये भी बनाए। अच्छा, क्या कहेंगे, आपने वोट किसको देने हैं और अपने मुस्तकबिल का फैसला आपने तय करना है? हमने कायद को देना है, जमीयत उलमा इस्लाम को देना है वोट। हमारा किताब है बस। आप लोग किताब है। मौलाना ने इस हल्के के लिए क्या किया, क्यों देंगे वोट, बुनियादी वजह क्या है? बस बुनियादी वजह इस्लाम है, ज़्यादातर जो हमारा सोच है इस्लाम की बुनियाद पर हम उसे वोट देते हैं। पहले जो उम्मीदवार यहाँ पे गुजरे उन्होंने यहाँ पे काम किए है कि नहीं किया है? उम्मीदवार सब ने यहाँ पे थोड़ा सा काम किया था, उम्मीदवारों के खिलाफ हम नहीं है, ठीक है। अभी जो सिलसिला बहुत ख़राब चल रहा है क्योंकि बिजली नहीं है, यहाँ पे मुश्किल है, बिल ज़्यादा आता है और बिजली नहीं है, कम से कम 16 घंटे लोड शेडिंग। मेरे ख्याल में जितने ट्रांसफार्मर इस इलाके में नूर आलम खान ने लगाए हैं तो अभी तक किसी ने खाली बोर्ड भी उधर इतना नहीं लगाया है। अच्छा, आप वोट किसको देंगे? जो हमारे इलाके में काम करते हैं, यहाँ बिजली का बहुत सख्त मुश्किलात है, गैस की भी मुश्किलात है, ये सब लोग खड़ा है, किसके घर में गैस है, कोई बताएगा कि हमारे घर में गैस है, हम इसको उस बंदे को देंगे जो हमारे काम करते। वोट किसको देंगे? इमरान खान को देंगे जी, वजह? वो हमारा लीडर है, वो गरीबों के लिए सोच रहा है। ज़्यादातर लोग जो कहते हैं हम वोट यहाँ पे इमरान खान को देंगे तो उनका ये कहना है कि सेहत कार्ड का जो मंसूबा है वो दिया था हमें। पानी का इतना मसला है, इतना ख़राब पानी है, इंसान कोई जानवर भी नहीं पीता। हम ये मतलब MPA MNA जो भी है, हम उसको कई बार गया भी, गैस के बारे में, बिजली के बारे में, पानी के बारे में, लेकिन इधर कोई आता नहीं है। यकीनन इस हल्के के अवाम का मिला जुला रद्द-ए-अमल सामने आया। किसी ने कहा हम PTI के उम्मीदवार को सपोर्ट करेंगे, किसी ने कहा हम जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार को पास करेंगे। ऐसे लोग भी हमें मिले कि उनका ये कहना था कि हम किसी को भी वोट नहीं देंगे, वोट देने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि मुंतखब जो हमारे उम्मीदवार होते हैं उनके पास हम बार बार चक्कर लगाते हैं लेकिन कोई भी यहाँ पे वापस नहीं आते हैं, लिहाजा हम वोट किसी को नहीं देंगे। ये बातें थी तो लोगों की। अब कामयाब कौन होता है ये फैसला 8 फरवरी को हो जाएगा। NA-28 की मौजूदा सूरत हाल तो आपने जानी। अब रुख करते हैं शहर इख्तिदार का, जहाँ पर ये मेरे पीछे नज़र आने वाली इमारत भी मौजूद है। इस्लामाबाद का हल्का है NA-48। ये हल्का शहरी और दही इलाकों दोनों पर मुश्तमिल है। राजा खुर्रम नवाज आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं जिन्हें नून लीग और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी
सपोर्ट कर रही हैं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर भी इसी हलके से मैदान में उतरे हैं और पीटीआई की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार अली बुखारी भी इस हलके के अंदर ही बतौर उम्मीदवार वहां पर मौजूद है। पीने के पानी का मसला वहां पर है क्योंकि अदम दस्तयाबी है और वहां के जो मकीन है वो दीगर मसाइल लेकर शिकवा कुना है। सड़कें यहाँ भी टूट फूट का शिकार हैं और महंगाई, अवाम महंगाई और कारोबार ना होने का गिला शिकवा भी कर रहे हैं। इस हलके में क्या कुछ हो रहा है कि ऐसी गहमा गहमी है और जो वहाँ पर मौजूद मकीन है उनके क्या शिकवे शिकायत है, बताएंगे इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे असगर हयात। जी असगर, बताइएगा। जी, इस्लामाबाद के हल्के NA48 में मौजूद हूँ और शहरी और दही इलाकों पर यह हल्का मुश्तमिल है। गुज़श्ता इंतखाबात में राजा खुर्रम नवाज तहरीक इंसाफ के टिकट से यहाँ पर कामयाब हुए थे। इस मरतबा राजा खुर्रम नवाज आज़ाद हैसियत से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो उनको सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा मुस्तफ़ा नवाज खोकर अभी यहाँ से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और तहरीक इंसाफ के टिकट पर अली बुखारी यहाँ से उम्मीदवार हैं। यहाँ के क्या मसाइल हैं और लोगों की आम इंतखाबात के हवाले से क्या राय है, आइए जानते हैं। हमारा जो मेन इशू है यहाँ इस इलाके में वो पानी के हवाले से है। अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो डे बाई डे जो है वो नीचे जा रहा है। खान अब्दुल कयूम खान का निशान था शेर और वही शेर जहाँ भी है हम तब पे लगाएंगे। सीवरेज का इतना मसला है कि जब भी बारिश होती है यहाँ पे गाड़ियाँ डूब जाती हैं। ठीक है, पानी का जो जेन्युइन मसला है, पीने के पानी का बहुत मसला है। यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई प्रॉपर स्कीम है ही नहीं। महंगाई है बहुत ज़्यादा और कारोबार भी नहीं है, सब दरहम बरहम है। ऐसा नहीं है कि एक मसाइल है, मसाइल इतने हैं कि हिसाब नहीं है इसका। ऐसा बैठा हुआ अपना खर्चा नहीं कमा सकते तो बच्चों के लिए क्या कमाएगा बंदा। रोडों की हालात देख लें, ये नाले आपके सामने है सारे। आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह फुल सपोर्ट मुस्तफ़ा नवाज खोकर को करेंगे जो NA47 NA48 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे लोगों का जीना आराम हो चुका है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल की जो प्राइसेस है वो भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और जो मुल्क की इकॉनमी है उसकी भी सिचुएशन दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। मसाइल तो बहुत सारे हैं। इलेक्शन से उम्मीद ये है कि अगर कोई अच्छा बंदा आ जाए इस मुल्क के अंदर, निज़ाम अच्छा चलाए और महंगाई को कम करे। अवाम की सबसे बड़ी परेशानी है महंगाई, क्योंकि एक तो डीजल पेट्रोल बहुत महंगे, उसकी वजह से महंगाई बहुत बढ़ जाती है। एक हॉस्पिटल यहाँ पे नहीं है मौजूद, जो बन रहा था वो पिछली हुकूमत ने उसको आके रोक दिया। ये सामने आपके बिल्कुल रोड के पार जो मरकज़ में हॉस्पिटल बन रहा था इसको ख़त्म कर दिया गया। वोट जो हम चाहते हैं कि जो भी आए वो काम करे इस मुल्क में आके। जिन्होंने मसाइल हल करने थे उन्हें तो आपने बंद करके रखा हुआ है जी। कौन मसाइल हल करेगा? ये पहले भी तो 30 साल मसाइल हल करके भागे थे, अब वापस आ गए, क्या ये करेंगे जी? हल्का NA48 के बासियों का कहना है कि महंगाई, बेरोजगारी, पानी, सीवरेज समेत उनके दर्जनों मसाइल हैं। जो इन मसाइल का हल करेगा वोट उसी को देंगे। कैमरामैन ओन रजा के साथ असगर हयात, GNN इस्लामाबाद। इस्लामाबाद के इस आम हल्के की सूरत हाल तो आपने जानी और पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर किस तरह की गहमा गहमी है ये भी आपने जान लिया। पाकिस्तान के मैनचेस्टर की जानिब रुख करते हैं, यानी फैसलाबाद का जिक्र करता है जिसका पुराना नाम लायलपुर है। यहाँ के हल्का NA104 का 90% हिस्सा शहरी आबादी पर मुश्तमिल है और हल्के के आवाम महंगाई में कमी और रोज़गार चाहते हैं और आवाम ये भी शिकवा करते हैं कि उम्मीदवार सिर्फ इलेक्शन के दौरान नजर आते हैं वरना ईद का चांद होते हैं, इसके बाद गायब हो जाते हैं। और उसका ये भी कहना है कि वो ऐसे हुक्मरान चाहते हैं जो उनके लिए बेहतर सोचे। इस हल्के में वोटर्स क्या राय रखते हैं, वोटर्स की तादाद कितनी है और क्या मसाइल है, बताएंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद औरंगजेब मलिक। जी औरंगजेब। हम मौजूद हैं फैसलाबाद के हल्का NA104 की, जो कि शहरी आबादियों पर मुश्तमिल है। तो इसके साथ मुजाफाती इलाकों की बात करें तो सिर्फ 10% इस हल्के में देहाती इलाके शामिल हैं, बाकी 90% जो है इस NA104 में शहरी आबादियां शामिल हैं। तो नाजरीन, अब जो है वो NA104 की हम आवाम से बात करेंगे कि वो इस बार जो है वो किसको वोट देंगे और वो अपने हल्के में क्या तब्दीली चाहते हैं। जी बताइएगा कि 8 फरवरी का इलेक्शन आ रहा है, तो NA104 में क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? NA104 में क्या पूरे पाकिस्तान में एक ही तब्दीली होनी चाहिए। सबसे पहले जो महंगाई का तूफान है, उसके बाद ये जो मार्केट के हालात देख रहे हैं आप किस तरह के हुए पड़े हैं, सारे काम बंद हुए पड़े हैं, किसी किस्म का कोई काम चल नहीं रहा। जी अंकल जी, NA104 में इस वक्त हम मौजूद हैं, तो ये बताइएगा कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हो रहा है NA104 में क्या तब्दीली चाहते हैं आप, वोट किसको डाल रहे हैं? नवाज शरीफ को। जी अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन आ रहा है NA104 से, यहाँ पर राजा रियाज के बेटे
اور साहिबजादा हामिद रजा में मुकाबला है, तो क्या देख रहे हैं, कैसी तब्दीली देख रहे हैं इस बार? तब्दीली ने भाई जी भी होनी इसी इंशाल्लाह ताला हमद रजा ने देना वोट, या इमरान खान या हमद रजा बस। जी आप बताइएगा, इलेक्शन आ रहा है तो इस बार वोट किसको डाल रहे हैं? इंशाल्लाह ताला इमरान खान को डालेंगे। खान के उम्मीदवार यहाँ पर कौन है जी? इमरान खान के उम्मीदवार कोई भी हो, क्योंकि इमरान खान ने माड़े बंदे को सेहत काट दिया। जी आप बताइएगा कि 8 फरवरी को किसको वोट डाल रहे हैं और क्या तब्दीली चाहते हैं इलेक्शन? ये इलेक्शन के दौरान नजर आते हैं कैंडिडेट, उसके बाद नजर नहीं आते, ये बड़ा मसला है। ये बताइएगा कि इलेक्शन में किसको वोट डाल रहे हैं, 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान खान से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? इमरान खान जिंदाबाद। जी आप बताइएगा कि इलेक्शन आ रहा है तो किसको वोट डाल रहे हैं? पीटीआई। पीटीआई से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? 8 फरवरी में कौन सी तब्दीली आ जाएगी? 8 फरवरी की मुल्क की तब्दीली बदल जाएगा मुल्क। वोट जनाब साडा शेर दा मियां साहब दा, मियां साहब ने वोट देना, मियां नवाज शरीफ ਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਹ ਦਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਸੋਚਦਾ। इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको डाल रहे हैं? मियां नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब से क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं? बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता है। इलेक्शन आ रहा है, वोट किसको डाल? वोट शेर को जी। तो क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं यहाँ पे? तो महंगाई कम करेंगे। अच्छा ये बताइएगा कि इस इलाके के और मसाइल कौन कौन से हैं नूर? यही है, मतलब माशी हालात बेहतर नहीं है, बिजली भी सही नहीं आ रही, बेरोजगार लोग ज्यादा फिर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री बंद हुई हैं। यहाँ पर पहले राजा रियाज साहब इलेक्शन लड़ रहे थे, अब उनके बेटे लड़ रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा मुस्लिम लीग नून की टिकट से? कोई नहीं फर्क पड़ना इंशाल्लाह। सारे लोग कह रहे हैं कि वो वोट का बाइकाट करेंगे, क्या वजह है उसकी? वजह यही है, सारे टैक्स बिलों में डाले, गरीब तरह हो रहा है और कोई रिलीफ नहीं दे रहे। इलेक्शन के दिनों में आते हैं, वोट लेते हैं, उसके बाद कोई। अस्सलाम वालेकुम जी, बताइएगा इलेक्शन आ रहा है तो क्या तब्दीली चाहते हैं इलेक्शन में 8 फरवरी? अगर इलेक्शन आ भी गए तब्दीली कुछ भी नहीं होनी। वोट किसको डाल? किसी को भी नहीं। क्यों बाइकाट क्यों किया? बहुत सारे लोग कह रहे हैं। कोई भी अवाम के हक में नहीं है। अच्छा। कोई भी सियासतदान अवाम के हक में नहीं है। अच्छा ये बताइएगा, ये नूरपुर का इलाका है, यहाँ पर पिछले 5 साल के दौर में कोई काम हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। कौन से मसाइल है? मसाइल तो इतने क्या नाम लूं। सानू गैस नहीं मिलती, सानू बिजली नहीं मिलती, बिल इन्ने आ रहे हैं, तो कोई अपने कोई उन्होंने कोई जोड़िया हो, खफन जोड़िया हो, वो दे के अगले अपने बिल उतार रहे हैं। इन्होंने कोई है तकलीफ? कोई तब्दीली नहीं है। जिसको मर्जी वोट डाल लें, इमरान खान को डाल लें, नवाज शरीफ को डाल लें, बेनजीर को डाल लें, अब तब्दीली आनी नहीं है। ये तो सिर्फ इलेक्शन वोट लेने के लिए जितने मीठे प्यारे हुए हैं, कुछ भी नहीं होना। जी नाजरीन, NA 104 बड़ा एक तगड़ा मुकाबला जो है वो मुतवक्के है, लेकिन लोग जो है वो बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हमायत कर रहे हैं, कुछ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उनके मसाइल हल नहीं हुए और ना ही वो होने हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने इलेक्शन का बाइकआउट का भी जो है वो कहा है। महंगाई, बिजली और पानी के मसाइल हैं ढेर, किसी की ज़बान पर तीर है तो किसी की ज़बान पर शेर। अब रुख करेंगे मुख्तलिफ हलकों का, लेकिन इससे पहले हमें जाना है एक छोटी सी ब्रेक का। कहीं ना जाइएगा, हमारा इंतजार कीजिएगा। अब बढ़ेंगे शहर कायद की जानिब एक बार फिर और जिक्र करेंगे हल्का NA 238 का। इस हल्के में बहादुराबाद शामिल है, मोहम्मद अली सोसाइटी भी आती है, शरफाबाद भी है और गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक्स भी शामिल हैं, जो ये एक पोश इलाका भी कहलाता है। इस हल्के के गुंजान आबाद इलाकों में भी कराची के दूसरे हिस्सों जैसे मसाइल हैं, जैसे कि सीवरेज के मसाइल, पानी के मसाइल, बिजली के मसाइल और गैस के मसाइल। ये तीनों शायद ही नहीं मिलती। इस हल्के के वोटर्स अपने पुराने नुमाइंदों के बारे में क्या राय रखते हैं और आने वालों के लिए उनकी क्या तवक्कुआत है, उनका क्या कहना है और मुकाबला कैसा जा रहा है, बताएंगे हमारे नुमाइंदा GNN कराची राशिद सदीक। तो राशिद बताइएगा, क्या कहना है इस हल्के की आवाम का? आम इंतखाबात का मैदान सज गया है। मुल्क भर की तरह कराची में भी मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के हल्का NA 238 में और इसके इस ऐसे मरकज़ पर जो कि जेल चौरंगी कहलाता है। मेरे इस हाथ पर इस हल्के की पोश आबादी है, जिसमें बहादुराबाद, मोहम्मद अली सोसाइटी, शरफाबाद और गुलशन इकबाल के कुछ ब्लॉक लगते हैं।
जबकि मेरे इस हाथ पर इस हलके की वो गुंजान आबादियाँ हैं जहाँ पर मसाइल ही मसाइल नज़र आते हैं। आज हम इस हलके की आवाम से जानेंगे कि माजी में इस हलके से जो लोग मुंतखब हुए उन्होंने उनको जो ख्वाब दिखाए वो ख्वाब पूरे हुए या नहीं। PIB में एक और शहरी मौजूद हैं, यकीनन यहाँ के जो मसाइल हैं उससे वो काफ़ी नाउम्मीद हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे जानेंगे कि माजी में जो लोग यहाँ से मुंतखब हुए उन लोगों ने यहाँ के मसाइल को हल किया या नहीं किया। देखिए, जो माजी के अंदर जो लोग थे उन लोगों ने भी जो है ऐसे ही रखा, लेकिन अब भी जो है वो लोग फिर आ रहे हैं सामने, और जो उसके बाद वाले हैं वो लोग भी रहे, नए लोग नए चेहरे भी कुछ आ रहे हैं। अभी तक के कोई उम्मीद का किरण नज़र नहीं आ रही। अभी आप जहाँ खड़े हैं यहाँ पानी भरा हुआ होता है काफ़ी, तो चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहती हैं, लेकिन जिस तरह से मसाइल लोगों के हल होने चाहिए वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं आजकल, आपको पता है। भाई किलस रहे आज कम से कम 2-2 ढाई महीनों के बिजली का गैस का बोलान हो रहा है, बिजली का बोलान हो रहा है। इलेक्शन आ गए हैं, आप क्या समझते हैं कि जो इस हल्के की आवाम से साबिका उम्मीदवारों ने वादे किए थे वो पूरे हुए? नहीं, वो तो नहीं हुए पूरे। तो क्या क्या मसाइल हैं यहाँ? बहुत बड़े मसाइल हैं, ना बिजली है, ना पानी है, महंगाई है, हर चीज़ के मसाइल हैं। जो जीना हराम किया हुआ है गवर्नमेंट ने, गैस नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, हम लोग खुद परेशान हैं। बिजली, गैस, रोडों की हालत देख ले, गटर बह रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई जगह से जिसने जीता किसी ने भी मसले हल नहीं निकाला है, कोई सारे अपने जो है खजाने भरे, बस अपने लोगों ने अपने पेट भरने वाले काम किए। कोई भी नहीं करते भाई, सब अपने अपने मसले करते हैं। गैस का इतना मसला है, लाइट का मसला है, जमादार नहीं आते, गटर भरे हुए इतने सब जगह के, वोट लेने तो सब आते हैं, काम कोई नहीं करता। जो लोग इलेक्शन करवा के, वोट से कौन आया आज तक? कोई आया नहीं है ना, सब मर्जी से आते हैं, काम भी मर्जी से होते हैं, हमारी मर्जी से नहीं, उनकी मर्जी से। पटेल पाड़ा है, कच्ची आबादी है, गुंजान आबादी है, मसाइल भी बहुत ज़्यादा होंगे, तो आप क्या समझते हैं क्या क्या मसाइल हैं यहाँ पे? यहाँ पे एक तो गटर लाइनों का ज़्यादा इशू है, जो प्रॉपर तरीके से जो है काम नहीं होता, और दूसरा पानी का है, और गैस पिछले 2 साल से नहीं आ रही। नहीं, आप क्या समझते हैं कि 8 फरवरी के बाद जो लोग जीतेंगे वो आपके मसाइल हल करेंगे? नहीं, कोई मसाइल नहीं हल करता, ये तो 70 सालों से हल नहीं हुआ, आज नहीं होंगे। हल्का इन्हें 238, PS 101, 102 और 103 के मसाइल यहाँ की आवाम की ज़बानी आपने सुने। ये वो मसाइल हैं जिनके हल के लिए एक बार फिर यहाँ की आवाम ने 8 फरवरी को जीतने वाले उम्मीदवार से उम्मीदें लगाई हुई हैं। यकीनन 8 फरवरी का दिन इस हलके की आवाम के लिए भी अहमियत का हामिल होगा, और जो उम्मीदवार भी, जिस पार्टी का भी उम्मीदवार जीतेगा उसको इस हलके की आवाम को 8 फरवरी के बाद जवाबदेह होना होगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची। ये थे कराची के इस हल्के की कहानी। हर आदमी है परेशान, कौन बदलेगा ये प्यारा पाकिस्तान? ये फैसला आपने करना है, ये फैसला मैंने करना है, ये फैसला हम सब ने मिलकर करना है। इसीलिए GNN कहता है मेरा वोट मेरा फैसला, और जरूर ये 8 फरवरी को आप ये फैसला कीजिए। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।